Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today I will discuss about the reversibility of the light, which is a very important topic and concept which help us to understand the refraction of light and to discuss many applications of the refraction of lights, which is very important as the point of view of the daily life. Okay, so first of all we discuss here the principle of reversibility of light. First of all, I will understand the concept of the reversibility of the light and then we'll define it. Okay, so see the figure here. Suppose this is an transparent medium. Okay, suppose this is an transparent medium. Suppose this is medium first here and this is medium second. Suppose this is a rare medium and it is denser medium. Then first of all we draw a normal at this point in both sides. So it's a boundary, transparent boundary. Okay, so suppose it's a ray, incident ray, and angle of incidence is I, get refracted in second medium with angle of refraction R. देखिए होता क्या है कि सपोज़ करिए कि आपकी कोई लाइट रे है और वो आपने मीडियम फर्स्ट से इंसिडेंट की, तो सेकंड मीडियम में वो इस प्रकार आपकी मूव करेगी। सपोज़ करिए कि यहाँ ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट O है और ये आपकी रे क्या है, ये आपका पॉइंट Q है। तो यदि हम क्या करें कि लाइट इधर से इंसिडेंट ना करके इधर से इस पॉइंट Q से इंसिडेंट करें और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I हो, तो ये लाइट सेम पाथ इधर ट्रेस करेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यही होगा, सेम इसी पाथ पर क्या करेगी, ट्रेस करेगी। ओके, दैट मीन्स इफ ए लाइट रे इंसिडेंस फ्रॉम मीडियम फर्स्ट, देन इट रिफ्रैक्टेड इनसाइड द in the second medium, and if at angle of incidence I and angle of refraction R. If this light ray we will incidence from second medium at angle of incidence R, then in this side the angle of refraction will be I. Okay, that means everything is reverse. तो आपकी जो लाइट है वो सेम पाथ को आपकी क्या करेगी, ट्रेस करती है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सो हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इफ़ ए रे ऑफ लाइट passes from medium 1 to medium second, taking path POQ, then it will retrace the same path QOP if it enters
from medium to and passes through medium first as shown in figure, then this property of light is known as principle of reversibility of light. So according to this, if incident this light ray from medium second at the angle of incidence r, then it will go in first medium at same angle of refraction I. Okay, this principle is known as principle of reversibility of light. Now we will find out the relation, general relation between relation between the refractive indices of the mediums. And it is very, very important for the numericals. So consider this is a medium first. Okay, and it's a normal at this point. Suppose this is an incident ray at angle I. There is medium second, so it will refract by medium second by this boundary and goes, suppose like this. Okay, suppose angle of refraction is here r. Okay, and here also another boundary of any medium third. Okay, सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आपका ये लाइट अगेन रिफ्रैक्ट होगी इस बाउंड्री से के कारण। सपोज कर लीजिए यहाँ पर देखिए ये दोनों रेज लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है। ये एक ट्रांसपेरेंट लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है सॉरी, ये भी एंगल आपका आर हो जाएगा। सपोज कर लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर डैश है, कितना है, आर डैश। सपोज कर लीजिए कि अब इस पॉइंट के बाद क्या है, आपका मीडियम फर्स्ट ही आ जाता है, रिपीट हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी ये मीडियम फर्स्ट में ही मूव करेगी। ये आपका मीडियम फर्स्ट हो गया, यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आपका आर डैश हो गया। तो ये अब ये जो आपने देखा ना था ना कि हमने एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी डिफाइन किया यहाँ पर, तो आप देखिए कि यदि आप इस एंगल इधर से फिर से रिट्रेस करती है आपके पाथ को, तो रिट्रेस करने का मीनिंग ये होगा कि चूँकि आपकी सेम मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ ये आई जो है इतने ही एंगल से आपकी इधर क्या हो जाएगी, ये बाहर निकलेगी। तो ऐसे ये लाइट इसके पैरेलल यहाँ पर निकलेगी, क्लियर है।
तो ये पैरेलल रेज हैं, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा आई। क्लियर है ना यहाँ तक। तो सपोज कर लीजिए कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है वो आपका, सपोज कर लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज़ 1 and 2, और यहाँ पर जो होगा 2 and 3 होगा, और यहाँ पर जो होगा ये 3 and 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो 1 से 2 में गया 1 and 2, 2 से 3 में गया 2 and 3, 3 से 1 में गया 3 and 1। रीडिंग कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, according to Snell's law, when light goes from medium first to second medium, sin I by sin R will be equals to 1 and 2. This is equation number first. And now for medium second to medium third, okay, डायरेक्ट कर दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए मीडियम सेकंड टू मीडियम थर्ड। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस R हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R' हो गया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया 2 and 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और मीडियम थर्ड टू मीडियम फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी R' and angle of refraction will be I equals to 2, 3 and 1. This is equation number third. Now multiply all three equations and then we will get, after multiplying these equations, after multiplying and third, चलिए साइन I बाय साइन R मल्टीप्लाई बाय साइन R डिवाइडेड बाय साइन R डैश मल्टीप्लाई बाय साइन R डैश डिवाइडेड बाय साइन I इक्वल्स टू 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 1। साइन R से कैंसिल आउट, R डैश से R डैश, साइन I से साइन I, दैट इज 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 1 इक्वल्स टू 1। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल थ्री मीडियम्स विल बी 1 if we take the order of the refractive indices according to this manner. Okay, so remember this formula very carefully because it is very very important formula. Okay, also find out the relation, this relation for टू मीडियम्स। ओके, तो टू मीडियम्स के लिए आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। टू मीडियम में आप देखिए क्या होगा, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड एंड देन मीडियम फर्स्ट। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा और उसे हम यूज़ करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को देखिए और ट्राई कीजिए समझने की। यदि कोई डाउट हो तो पूछिएगा। कल हम अगेन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।